Hello students, I am Pragati Galambe welcomes you all on my channel which is for bifocal banking. In the last video, we have already completed special type of individual customer. So in this video, we are going to study the special type of institutional account holders. Okay, what is the mean by institutionals? The person which has firm, which are working in the firm or which has his own firm, own business or own company. Okay, he opened the account in the bank on the name of his firm or on the name of his business or on the name of his company. Okay, now we start with the definition of customer that we have already seen. The customer is a person who has account in the bank and who enjoys the services rendered by bank. Okay, bank do not have special customers as such, but have the special procedure to treat their some kind of customers. Okay, as we have already seen, there is no any special customer for bank, but there are some persons or there are some institutional account holders or there are some customers where bank have to follow some special procedure to treat some kind of customers. Okay, those who are distinguished from other types of ordinary customer by some features, so they are called as a special type of customers. Okay, जिसके पास कुछ ऑर्डिनरी कस्टमर्स से भी कुछ अलग कस्टमर्स होते हैं जिनके लिए बैंक को क्या करना पड़ता है, bank have to follow some kind of special procedure. Okay, that customers known as a special type of customers. Okay, and that special types of customers are divided into two parts. First is individual account holders and the second is institutional account holders. Okay, in that we have already learned individual account holders, which includes minor, Pardanashin women, drunkards and lunatics, and illiterate persons and married women. Okay, now in this video we are going to learn what is the mean by institutional account holders. Okay, see, there are three types. The first is partnership firm account. See, partners. Second is trust account and the third is joint account. Okay, now let's start. The first is partnership firm. When two or more persons come together for the specific goal. Okay, two or more persons come together, establish one firm or establish one company to achieve some goal, to achieve some profit or to start some business. Okay, that firm, that business is known as a partnership firm. Okay, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स 2 भी हो सकते हैं, पार्टनर्स 10 भी हो सकते हैं, पार्टनर 20 भी हो सकते हैं. ओके, इट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन देयर टाइप ऑफ बिजनेस. ओके, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म. ओके, जब कोई भी पर्सन सोलली एक कंपनी ओपन करता है, पर्सन इंडिविजुअली कोई कंपनी ओपन करता है, द इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, बट 2 और उससे ज्यादा पर्संस एक साथ आके अगर कोई पर्पस के लिए काम करते हैं, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इज नोन एज अ पार्टनरशिप firm. Okay, the second is partners can open account in the bank on the name of firm. Okay, हमने institutional account holders के मीनिंग में देखा था. Why it is name of the firm? जब कोई भी पार्टनर्स बैंक में अकाउंट ओपन करेगा, वो पर्सनली या वो पर्सनल किसी भी पर्सनल नाम से अकाउंट ओपन नहीं कर सकता. He have to open the account on the name of firm. For example, 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स ने एक कंपनी ओपन की है, दैट इज XYZ लिमिटेड. ओके, व्हेन दे ओपन द अकाउंट इन द बैंक, द नेम ऑफ द अकाउंट इज XYZ अकाउंट, XYZ कंपनी अकाउंट और XYZ लिमिटेड अकाउंट. ओके, जब पार्टनर्स अकाउंट ओपन करेंगे वो उनका पर्सनल अकाउंट होगा, दैट कैन बी देयर सेविंग अकाउंट. ओके, बट जब अकाउंट फर्म के नाम पे ओपन होगा या कंपनी के नाम पे ओपन होगा, द अकाउंट विल बी पार्टनरशिप अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ओके, वो अकाउंट क्या होगा, करंट अकाउंट होगा. मोस्टली बिजनेस में वो अकाउंट ओपन करते हैं. ओके, नेक्स्ट, पार्टनर्स कैन बोरो लोन ऑन द नेम ऑफ फर्म बट दे ऑल हैव टू रीपे इट. ओके, पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, लोन बोरो कर सकते हैं इन ऑन द नेम ऑफ फर्म. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस एक्सपांशन के लिए या बिजनेस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, बिजनेस में लॉस में जा रहा है या किसी भी पर्पस के लिए अगर लोन चाहिए, तो वो कंपनी के नाम पे, हमारी जो XYZ लिमिटेड कंपनी के नाम का जो बैंक अकाउंट है, वो अकाउंट पे आप लोन बोरो कर सकते हो. बट वो कौन रिपे करेगा, ऑल पार्टनर्स क्या करेंगे, जॉइंटली वो लोन रिपे करेंगे. क्लियर?
For opening an account in the bank, partners required to submit the document. Okay, जब कोई भी पार्टनरशिप का अकाउंट ओपन किया जाएगा, पार्टनर्स को डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे. Which document? The first is partnership deed. Deed that means agreement. Okay, जब कंपनी ओपन की जाएगी एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा. इन दैट वहां पे क्या क्या लिखा होगा? द फर्स्ट कितने पार्टनर्स है वो सारे पार्टनर्स के नाम. ओके, कौन सी टाइप की कंपनी है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस. ओके, कौन से टाइप का बिजनेस है, कौन से टाइप का फर्म है, ये सब कुछ उसमें लिखा होगा. एंड दैट पार्टनरशिप डीड इज कंपल्सरी टू सबमिट इन द बैंक व्हाइल ओपनिंग द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, जब XYZ लिमिटेड का अकाउंट ओपन किया जाएगा उसमें पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी सबमिट की जाएगी. द सेकेंड इज पैन ऑफ द फर्म. ओके, जैसे इंडिविजुअल पर्सन का पैन कार्ड होता है वैसे फर्म के नाम का भी पैन कार्ड होता है. ओके, दैट पैन नंबर एंड दैट xerox कॉपी ऑफ द पैन इज वेरी कंपल्सरी टू सबमिट इन द बैंक. ओके, द थर्ड इज लाइसेंस. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो रिक्वायर दैट लाइसेंस. ओके, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रैवलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, आपने फॉर एग्जाम्पल फूड रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट किया, यू हैव टू गेट दैट लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट. ओके, आपके पास लाइसेंस चाहिए एंड बिफोर ओपनिंग द अकाउंट इन द बैंक यू हैव टू सबमिट दैट योर लाइसेंस टू द बैंक. ओके, वो लाइसेंस से बैंक को पता चलेगा कि आप पर्टिकुलरली कौन सा टाइप का काम करे. ओके, आपकी कंपनी लीगल है और इलीगल. क्लियर? द नेक्स्ट इज एड्रेस प्रूफ. सी दिस इज वेरी सिंपल. दैट इज एड्रेस प्रूफ ऑफ योर फर्म और एड्रेस प्रूफ योर बिजनेस. आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स. ओके, आपके कंपनी में आपके फर्म में जितने भी पार्टनर्स है उन सब का आइडेंटिटी प्रूफ आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा. क्लियर? दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म and all the documents which is required to submit in the bank. Okay, these documents are very important. You can board can ask the question regarding this documents. Okay, next that is a trust account. A trust account is a legal agreement through which funds or assets are held by third party, that is trustee, for the benefit of another party, that is beneficiary. Okay, next documents required to open the account. First is registration certificate. ट्रस्ट जहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाता है वो सर्टिफिकेट. सेकेंड ट्रस्ट डीड. ओके, ट्रस्ट एग्रीमेंट. एंड द थर्ड इज कॉपी ऑफ पैन कार्ड. ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फर्म का पैन अकाउंट होगा, पैन नंबर होगा सॉरी, वैसे ही ट्रस्ट अकाउंट का भी पैन ओपन किया जाएगा और वो पैन कार्ड का नंबर, वो कॉपी ऑफ पैन कार्ड आपको बैंक में सबमिट करना है. क्लियर? एड्रेस प्रूफ एंड द आइडेंटिटी प्रूफ. ओके, एड्रेस प्रूफ कहाँ पे ट्रस्ट, उसका एड्रेस एंड आइडेंटिटी प्रूफ, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का आइडेंटिटी प्रूफ वहां पे देना पड़ेगा. ओके, क्लियर? नेक्स्ट द जॉइंट अकाउंट. When two or more person jointly open the account is known as a joint account. Okay, joint account हमें पता है जो दो और टू और मोर पर्सन जॉइंटली ओपन द अकाउंट. ओके, उसको क्या बोला जाएगा? जॉइंट अकाउंट. Sign of all the account holders is must on the application and the account name given on the name of both account holder. Okay, जिसे पार्टनरशिप फर्म में हमने देखा कि पार्टनर कंपनी का जो नाम है वो नाम पे ही अकाउंट ओपन किया जाना. वैसे ही इन द केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट होल्डर्स का जो नाम है, अगर फॉर एग्जांपल दो पर्सन है उन्होंने अकाउंट ओपन, दो पर्सन है उन्होंने अकाउंट ओपन किया है, वो दो पर्सन का नाम वो अकाउंट में दिया जाएगा. ओके, आपका जो पासबुक है वहां पे दोनों पर्सन का नाम वहां पे आएगा. क्लियर? और वो जो एप्लीकेशन है, अकाउंट ओपनिंग का जो एप्लीकेशन है वो साइन करना पड़ेगा. ओके, जितने भी पर्सन होंगे, जितने भी पर्सन है, टू और मोर पर्सन जब जॉइंटली अकाउंट ओपन करेंगे वो अकाउंट ओपनिंग का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन पे सबकी साइन होना कंपलसरी है. ओके, नेक्स्ट, मैंडेट इज नेसेसरी टू सबमिट इन द बैंक. नाउ व्हाट इज द मीन बाय मैंडेट? ओके, मैंडेट क्या है? इट इज अ लेटर. ठीक है, एक लेटर लिखा जाता है और वो बैंक में सबमिट किया जाता है और वो लेटर पे सारे अकाउंट होल्डर्स की सिग्नेचर की जाती है. ठीक है, दैट इंक्लूड्स जितने भी अकाउंट होल्डर्स है उसमें से कोई भी एक पर्सन विल हैंडल ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द अकाउंट. ओके, फॉर एग्जांपल देयर आर टू पर्सन
who are jointly open the account. Okay, वो दो में से कोई भी एक पर्सन ही अकाउंट हैंडल करेगा, ठीक है, उसके साइन से ही सारे प्रोसीजर्स किए जाएंगे, उसका नाम मैंडेट में, दैट मीन्स वो लेटर में इंक्लूड किया जाएगा और नीचे दोनों अकाउंट होल्डर्स की सिग्नेचर की जाएगी. ओके, दैट लेटर इज नोन एज अ मैंडेट. In case of death of any one account holder, balance of account transfer to the survivor or the remaining account holders. Okay, अभी हमने देखा फॉर एग्जांपल दो अगर अकाउंट होल्डर्स है, उसमें से अगर एक की डेथ हो जाती है तो जो कुछ भी अकाउंट का बैलेंस है, भले वो मैंडेट पर्सन हो, जो कुछ भी अकाउंट का बैलेंस है और जितने भी अकाउंट का जो राइट्स है वो सारे राइट्स किसको ट्रांसफर किए जाएंगे? टू द सर्वाइवर. दैट मीन्स जो रिमेनिंग अकाउंट होल्डर्स है उसको सारे राइट्स ट्रांसफर किए जाएंगे. Clear? I hope you all understand what is meant by institutional account holders and the documents required to submit in the account while in the bank while opening that account. Okay? Thank you.